Very good morning, students, and most welcome in online classes. You know that very well. In our last class, we touched chapter number first in 11th class, and the name of the chapter was The Summer of the Beautiful White Horse. The Summer of the Beautiful White Horse, the story about Aram and Murad, you know that, and even you have just two pages with the help of that lecture. So the same chapter actually has been written by William Saroyan. So let's say we line again, okay? The same we had in our last class, the last line, okay, where we basically left. So let's say we line, students. So we were having the first para on page number second, basically page number third, okay? The chapter is The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. Okay, student, let's say we line. So we were talking about basically the conversation held between Murad and Aram at the time, okay, when he basically brought a white horse, okay, just outside the window. So let's have, it wouldn't become stealing until we offer to sell the horse. और कहा उसने कि it wouldn't become stealing, कि चोरी नहीं बनेगी until we offer to sell the horse, जब तक कि हम हॉर्स को सेल करने का ऑफर नहीं करते, जब तक हम हॉर्स को बेच नहीं देते, मतलब जब तक ये चोरी नहीं मानी जाएगी. Which of course I knew we would never do, जो सुनिश्चित रूप से मुझे मालूम था कि हम कभी नहीं करेंगे, जो सुनिश्चित रूप से of course मुझे मालूम था कभी नहीं करेंगे. Let me put on some clothes, I said, कि मैंने कहा चलो मुझे कुछ कपड़े पहनने दो. Let me put on some clothes, कि मुझे कुछ वस्त्र पहनने दो, मुझे कपड़े पहनने दो. Aram ने कहा actually he was 9 years old only, and they belong to, you know the very well, the tribe family, the Garogalian family. Let me put on some clothes, I said, मैंने कहा कि मुझे कुछ वस्त्र पहनने दो. And don't forget that where there is I basically belong to Aram. Okay, this chapter was the narrator of the story, The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. Let me put on some clothes, कहा मुझे कुछ वस्त्र पहनने दो, मुझे कपड़े पहनने दो. I said, मैंने कहा all right, ठीक है. He said, but hurry. चलो ठीक है. He said, कहा मुराद ने, लेकिन जल्दी करो. He said, कहा, उसने कहा all right, ठीक है, लेकिन जल्दी करो. I leaped into my clothes. I leaped का मतलब ऐसे उछलना होता है. I leaped into my clothes में to say कि मैंने फटाफट से अपने कपड़े पहने. I jumped down to the yard from the window, और मैंने विंडो से yard, I jumped down to the yard. yard का मतलब अहाता, जो चौक होता है बेसिकली. I jumped down to the yard from the window, मैंने विंडो से जो है यार्ड की ओर छलांग लगाई. And leaped up onto the horse, और घोड़े के ऊपर मैं कूद पड़ा. Behind my cousin Murad, किसके पीछे? मेरे मुराद के पीछे. He was already on the horse, and मैं उसके पीछे बैठ गया. That here I jumped down to the yard from the window, मैंने विंडो से जो है यार्ड की ओर छलांग लगाई. And leaped up onto the horse, और घोड़े पर बैठ गया. Behind my cousin Murad, मेरे cousin मुराद के पीछे. That year we lived at the edge of town. That year, उस साल, किस साल की बात है? उस साल जब हमने घोड़े को वहाँ से लिया था, घोड़े की सवारी का आनंद लिया था. That year we lived at the edge of town. उस वर्ष जो है हम कस्बे के किनारे पर, कस्बे की सीमा पर रहते थे. On Walnut Avenue, where? Walnut Avenue पर. Behind our house was the country, और हमारे देश, हमारे behind our house, हमारे घर के पीछे जो है was the country, एक country था. country का मतलब basically एक ग्रामीण क्षेत्र था. That year we lived at the edge of town, और उस वर्ष जो है हम कस्बे की सीमा पर रहते थे. और उस कस्बे कहाँ पर था? On Walnut Avenue पर. Behind our house was the country, और हमारे घर के पीछे जो है ग्रामीण क्षेत्र था. Vineyards, अंगूर के बगीचे, orchards, बगीचे. Irrigation ditches का मतलब होता है सिंचाई की खाइयाँ, सिंचाई के गड्ढे. And country roads, और ग्रामीण सड़कें, और गांव की सड़कें चारों ओर थी. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue. In less than 3 minutes, और 3 मिनट से कम समय के अंदर हम Olive Avenue तक पहुंच गए. घोड़े की सवारी करते करते in less than 3 minutes, 3 मिनट से कम समय के अंदर we were on Olive Avenue, हम Olive Avenue पहुंच गए थे. And then the horse began to trot, और उसके बाद जब हम Olive Avenue पहुंचे तो हॉर्स ने जो है ट्रॉट करना शुरू किया. ट्रॉट का मतलब उसने दौड़ना शुरू किया. So in less than 3 minutes we were on Olive Avenue, और 3 मिनट से कम समय के अंदर ही, 3 मिनट से भी कम समय के अंदर ही हम Olive Avenue पहुंच गए थे. And then the horse began to trot, और उसके बाद हॉर्स ने जो है ट्रॉट करना शुरू किया, मतलब उसने दौड़ना शुरू किया. The air was new and lovely to breathe. The air was new, हवा सुहानी थी. The air was new का मतलब सुहानी थी, आनंददायक थी. The air was new, हवा काफ़ी सुहानी थी. And lovely to breathe, और सांस लेने के लिए काफ़ी आनंददायक थी.
हवा काफ़ी न्यू थी, हवा काफ़ी सुहानी थी और सांस लेने के लिए काफ़ी आनंददायक थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग, द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और घोड़े की सवारी करना, घोड़े का यूँ दौड़ना आश्चर्यजनक था। हवा सुहानी थी, द एयर वॉज न्यू, द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रेथ। हवा काफ़ी सुहानी थी और आनंद और सांस लेने के लिए काफ़ी आनंददायक थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और हॉर्स का यूँ दौड़ना बड़ा ही आश्चर्यजनक था। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। My cousin Murad was considered one of the craziest member of our family। और मेरा कज़न मुराद जो है हमारे परिवार के सनकी सदस्यों में से एक सनकी सदस्य माना जाता था। It means that he was crazy also। It means that he was crazy also। So my cousin Murad was considered, मेरा कज़न मुराद जो माना जाता था one of the craziest members of our family, हमारे परिवार का एक सनकी सदस्यों में से सदस्य माना जाता था। बिगन टू सिंग, उसने गाना गाना शुरू किया, उसने गाना गाना शुरू किया। आनंद आ रहा था घोड़े की सवारी करते करते, उसने गाना गाना शुरू किया। I mean, मेरे कहने का मतलब है he began to roar, उसने गरजना शुरू किया। ओके, उसने गाना गाना नहीं आता था तो उसने गाना गाना शुरू किया। I mean to say he began to roar, उसने रोर करना शुरू किया, उसने गरजना शुरू किया। Every family has a crazy streak in it somewhere। Every family has a crazy streak in it somewhere। हर परिवार में, गैरो-ग्लेनियन फैमिली के परिवार में, the tribe basically that was mind purely, हर उस परिवार में जो है every family has a crazy streak in it somewhere। हर परिवार में कहीं ना कहीं जो है सनकीपन की धारा थी। हर परिवार में कहीं ना कहीं किसी न किसी मेंबर में एक क्रेजी स्ट्रीक था, एक सनकीपन की धारा थी, एक ऐसा बिहेवियर एक फैमिली मिल जाता था जैसा कि मेरा कज़न मुराद था। ओके, सो एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। और हर परिवार में कहीं ना कहीं जो है सनकीपन की धारा थी। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक। And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak। और मेरा कज़न मुराद जो है इस क्रेजी स्ट्रीक का, इस सनकीपन की धारा का नेचुरल डिसेंडेंट था। एक स्वाभाविक क्या कहते हैं, स्वाभाविक कहते हैं ना, वो जो पूत सपूत होते हैं, क्या कहते हैं, वंश था, स्वाभाविक वंश था, मतलब उसका उत्तराधिकारी, डिसेंडेंट उत्तराधिकारी था। और मेरा जो मुराद था, मेरा जो कज़न मुराद था, वो इस सनकीपन की धारा का एक नेचुरल डिसेंडेंट था, एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी था। ब्लड रिलेशन इन अ फैमिली। ओके, इन आवर ट्राइब, हमारी जनजाति में वह एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी था इस सनकीपन की विचारधारा, सनकीपन की धारा का। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुशरो, और उससे पहले हमारे अंकल खुशरो थे। अब तो मेरा भाई मुराद है इस सनकीपन हमारे व्यवहार की, इस उत्तराधिकारी है इस व्यवहार का, लेकिन उससे पहले जो है हमारे अंकल खुशरो थे। ओके, डोंट फॉरगेट दैट बिफोर हिम मुराद से पहले वाज आवर अंकल, हमारे अंकल थे। हमारे अंकल बहुत सनकी हुआ करते थे और अंकल का नाम था खुशरो। ओके, वी विल प्रोनाउंस द गिवन नेम एज खुशरो, बट द रियल प्रोनाउंसिएशन इज खुरो। द रियल प्रोनाउंसिएशन इज जस्ट खुरो। ओके, बट we'll say खुशरो। ओके, ऐसा ये फेमस है खुशरो के नाम से इस चैप्टर के अंदर। सो we'll say खुशरो, बट द रियल प्रोनाउंसिएशन इज, आप कहते हैं रियल प्रोनाउंसिएशन, द वर्ड इज नॉट प्रोनाउंसिएशन। चेक कर लेना उस प्रोनाउंसिएशन में प्रोनाउन होता है क्या। ओके, सो रियल प्रोनाउंसिएशन इज खुरो, बट we'll say खुशरो। ओके, सो बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुशरो। ओके, और मेरे कज़न मुराद से पहले जो हमारे अंकल खुशरो थे, जो इस क्रेजी बिहेवियर के लिए, क्रेजी स्ट्रीक के लिए बहुत जाने जाते थे हमारे इस ट्राइब फैमिली में। ओके, एन इनॉर्मस मैन, जो मेरे अंकल थे एक इनॉर्मस मैन थे, एक विशाल का व्यक्ति थे, मतलब काफ़ी हेल्दी वेल्दी थे। एक इनॉर्मस मैन थे विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर विद अ पावरफुल हैट। इनका बहुत ही एक शक्तिशाली सर था, बहुत ही माइंडेड थे, पावरफुल हेड था और ब्लैक हेयर, काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मस्टैच, और लार्जेस्ट मस्टैच थी, बड़ी बड़ी मूछें थी, बड़ी मस्टैच, बड़ी मूछें थी। इन द सेंट जॉक्विन वैली, सेंट जॉक्विन वैली में, पूरे के पूरे सेंट जॉक्विन वैली में बड़े बिग मैन थे। ओके,
पावरफुल हेड वाले थे, ब्लैक हेयर थे उनके और बड़ी बड़ी मूछें थी। कहाँ पर, किस वैली में? सेंट जैक्विन वैली में। एंड वन ऑफ द लॉन्ग इंटीरियर वैली ऑफ कैलिफोर्निया, द गिवन वन इज हियर सेंट जैक्विन वैली, बेसिकली इट्स फेमस इन कैलिफोर्निया, वन ऑफ द लॉन्ग इंटीरियर वैली ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के जो है मतलब जो लॉन्ग इंटीरियर वैलीज उनमें से एक वैली हमारी आती है। हमारी ये वाली कौन सी? सेंट जैक्विन वैली। और उस वैली में जो बड़ी बड़ी मूछें वाले हमारे खुशरो अंकल थे, जो संघीपन की विचारधारा के वो उत्तराधिकारी थे। उसके बाद अब मेरा कज़न मुराद है ही। ओके, अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और वह जो मेरे अंकल थे काफ़ी फ्यूरियस थे अपने टेम्पर में, अपने मिजाज में काफ़ी क्रोधित रहते थे, अपने मिजाज में काफ़ी गुस्से में रहते थे, काफ़ी फ्यूरियस रहते थे। सो इरिटेबल, काफ़ी चिड़चिड़े थे, काफ़ी चिड़चिड़े भी थे। सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। सो इम्पेशेंट, काफ़ी इम्पेशेंस थे, उनमें पेशेंस नहीं था, उनमें धैर्य नहीं था, काफ़ी अधैर्यवान थे। दैट ही स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, वह किसी को भी जो है चुप करवा दिया करते थे गरज के द्वारा। गरज करके चिल्ला करके जोर से बोल करके मेरे अंकल खुशरो जो है किसी को भी जो है वो चुप करवा दिया करते थे और कहते थे इट्स नो हार्म, कोई बात नहीं, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। और कहते थे कोई बात नहीं, इट्स नो हार्म, कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इस बात पर कोई ध्यान मत दो, मतलब ध्यान मत दो, कोई बात नहीं ध्यान मत दो, कोई बात नहीं ध्यान मत दो। ओके, दैट वाज ऑल, इतना ही काफ़ी था। दैट वाज ऑल, इतना ही काफ़ी था। मतलब वो यही कहा करते थे, क्या बोलते थे? वो बोलते थे इट्स नो हार्म, कोई बात नहीं है, पे नो अटेंशन टू, इस बात ध्यान मत दो। मतलब कुछ भी कहो, एक ही लाइन है कि कोई बात नहीं, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन ऑन इट, इस पर ध्यान मत दो, ऐसा बोला। दैट वाज ऑल, इतना ही बोलते थे। ओके, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कि कोई क्या बात कर रहा था, कोई क्या बात कर रहा था, किसी का मैटर क्या था, कोई क्या डिस्कशन कर रहा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था हमारे अंकल खुशरो को। लेकिन वो कहते थे इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन ऑन इट, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ध्यान मत दो। ओके, वंस इट वाज हिज ओन सन एरिक, एक समय की बात है, उनका अपना पुत्र, एक समय की बात है, खुशरो अंकल का अपना पुत्र, नाम था उसका एरिक। क्या नाम था उसका? एरिक, नाम था उसका एरिक। रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, वे रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, 8 ब्लॉक से इज द नेम ऑफ स्ट्रीट, इज द नेम ऑफ प्लेस। हमारे यहाँ पे जो नाम होते हैं वो वेस्टर्न नेशन में कमी मिलता है। ओके, वहाँ पे नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, 7th स्ट्रीट, 8th स्ट्रीट, लाइक दैट एवेन्यू, ऐसे इस तरह से नाम फेमस है इस प्लेसेस के, जगह के, गलियों के। सो वंस इट वाज हिज ओन सन, एक समय की बात, उनका अपना पुत्र, नाम था उसका एरिक, नाम था उसका एरिक। द नेम ऑफ हिज सन वाज एरिक। एरिक रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, 8 ब्लॉक से बार्बर शॉप पे आ रहा था। एक समय की बात है, उनका पुत्र जो है नाम है उसका एरिक। वह एक समय की बात, उनका पुत्र जो नाम है उनका एरिक, उसका नाम था एरिक। वह 8th एवेन्यू से बार्बर शॉप पे आ रहा था, नाई की दुकान पे आ रहा था। वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज मस्टैच ट्रिम्ड, जहाँ पर उसके पिता हमारे अंकल खुशरो जो है मस्टैच ट्रिम्ड, अपनी मूछों को ट्रिम्ड करवा रहे थे, अपनी मूछों को ट्रिम करवा रहे थे। टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, और वह आया अपने पिता को बोलने के लिए कि पिता द हाउस वाज ऑन फायर, इनके घर में आग लगी थी। मतलब वो कहने के लिए आया कि पापा घर में आग लगी है। पापा बार्बर शॉप पे थे, मस्टेच को ट्रिम करवा रहे थे। बेटा एरिक दौड़ा आया 8th एवेन्यू से, कहाँ से आया? वो आया 8 ब्लॉक से आया, बार्बर शॉप पे आया और कहा कि पापा घर में आग लगी है। उनके घर में आग लगी थी, ऐसा कहा उसने। ओके, दिस मैन खुशरो सेट अप इन द चेयर, और वह खुशरो जो आदमी था, मतलब जो मेरे अंकल थे, वो कुर्सी पे बैठे थे। एंड रोड, और गरजे कहा इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात पर ध्यान मत दो, कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात। घर में आग लग गई, खुद घर में आग लगी हुई है, द हाउस इज ऑन फायर, बट उन्होंने कहा कि इट्स नो हार्म, नो पे नो अटेंशन ऑन इट, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बाबर ने कहा, नाई ने कहा, बाबर ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का कह रहा है आपका कि आपके घर में आग लगी है। फिर कहा सो खुशरो रोड, और खुशरो अंकल गरजे। खुशरो गरजे कहा इनफ, बहुत हो गया, पर्याप्त है, बहुत हो गया, इट्स नो हार्म, ऐसे मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं है। ही वॉज द क्रेजियस्ट वन ऑफ द क्रेजियस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, ऐसे ही थे हमारे अंकल खुशरो। I don't forget that in examination the question may be asked about Uncle Khushro. It's a good explanation about the personality of a character. Let's say, okay, it's no harm I say. अब आगे चलते हैं। खुशरो अंकल की बात हुई, वापस हम घोड़े की सवारी करते हैं, आते हैं चलो आरएम और मुराद के पास।
My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. और मेरा cousin जो मुराद था, मेरा चचेरा जो भाई था, was considered the natural descendant of this man. वैसे आदमी का मतलब इस हमारे अंकल खुसरो का natural descendant माना जाता था, एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता था। कुछ ऐसा ही था मेरा cousin मुराद, अंकल खुसरो की तरह। वो पे नो अटेंशन वाली बात भले उसमें ना हो, लेकिन कुछ उसमें ऐसे गुण उसमें थे। ओके, ऑल्दो मुराद फादर वाज जौरब, हालांकि मुराद के जो फादर थे वो जौरब थे। ओके, व्हाट्स द नेम ऑफ मुराद फादर? मुराद के जो फादर थे वो जौरब थे, अंकल खुसरो उनके हमारे अंकल थे। ओके, ऑल्दो मुराद फादर वाज जौरब, हालांकि मुराद के जो फादर थे वो जौरब थे, वो वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो बड़े प्रैक्टिकल थे। प्रैक्टिकल थे मतलब व्यवहारिक थे, एंड नथिंग एल्स, और कुछ और नहीं थे इसके अलावा। भाई जेनेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, जीन ट्रांसफॉर्मेशन तो कहाँ से कहाँ हो जाता है, बायोलॉजी आप पढ़ते होंगे 11th के साइंस आपने पढ़ा होगा। जो पेरेंटल जीन है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, कहाँ का जीन कहाँ आ जाता है, 4 से लेके 5 जनरेशन के पहले का जीन ट्रांसफर में हो जाता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स जैसा होते हैं, जैसा पेरेंट्स का बिहेवियर है वैसा आपका भी, डजंट मीन दैट। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफ़र जो है, और कई पीढ़ियों से लेके कई जनरेशन का, कई एंसेस्टर्स का आ जाता है। ओके, कई एंसेस्टर्स का आ जाता है, तो ये तो होता ही है ऐसा, ठीक है, जेनेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता ही है। तो कहा कि फादर का नाम जुराब था मुराद के, वो वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो काफ़ी प्रैक्टिकल थे और नथिंग एल्स, और कुछ और नहीं थे, बड़े ही प्रैक्टिकल थे, बड़े ही व्यवहारिक थे और कुछ और नहीं थे। अंकल खुसरो पे गया था मुराद, जबकि वो उसके फादर नहीं थे। फैमिली में जीन ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, That's how it was in our tribe. That's how it was in our tribe. और इस प्रकार से सब कुछ हमारे जनजाति में था। A man could be the father of his son slash. A man could be the father of his son slash. एक आदमी अपने बेटे के भौतिक शरीर का पिता तो हो सकता था। A man could be a father. A man could be a father of his son slash. हमारी जनजाति में एक व्यक्ति जो है अपने पुत्र के भौतिक शरीर का, अपने पुत्र के फ्लैश का, भौतिक शरीर का जो है पिता हो सकता था, उसकी बॉडी का पिता, उसके फ्लैश का, उसके भौतिक शरीर का पिता हो सकता था। बट दैट डिडंट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। दैट डिडंट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसके स्पिरिट, उसकी मनोवृत्ति का भी पिता था। उसके स्पिरिट, उसके मनोवृत्ति, उसकी मनोवृत्तियों का भी पिता था, ऐसा नहीं था। A man could be the father, a man could be a father of his son's flesh, but doesn't mean that he could be a father or he would be a father of his son's spirit. लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वह उसके अपने पुत्र की मनोवृत्तियों का, अपने पुत्र की स्पिरिट्स का भी वह पिता होगा, ऐसा नहीं था। तो वो तो कहीं से भी आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, पेरेंटल जीन है। इसके बाद है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स ऑफ आवर ट्राइब। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब, हमारी जनजाति के विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियों का जो वितरण था, हमारी जनजाति के विभिन्न प्रकार के स्पिरिट का, मनोवृत्तियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो वितरण था, had been from the beginning, शुरुआत से ही, capricious and vagrant, शुरुआत से ही capricious and vagrant, बड़ा आवारा और मनमोजी था। And the meaning of capricious is आवारा and the meaning of vagrant is मनमोजी। शुरुआत से ही जो डिस्ट्रीब्यूशन था इन इस प्रकार की मनोवृत्तियों का हमारी जनजाति में, बड़ा ही आवारा और मनमोजी था, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन था, बड़े ही वैग्रेंट, बड़ी ही कैप्रिसियस काइंड ऑफ स्पिरिट्स जो है मिला करती थी हमारे जनजाति में। We rode, my cousin, we rode and my cousin Murad sang, we rode, हमने सवारी की, राइड का सेकंड फॉर्म यहाँ पर रॉड है, वी रॉड, हमने सवारी की थी। एंड माई कज़न मुराद sang, और मेरे कज़न मुराद ने गाना गाया था। हमने सवारी की थी और मेरे कज़न मुराद ने गाना गाया था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, फॉर ऑल एनीबडी न्यू, फॉर ऑल सभी लोगों की बात करें, एनीबडी न्यू सभी जानते थे, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम सभी भी जो है पुराने ग्रामीण क्षेत्र में थे। कंट्री का मतलब यहाँ पर देश नहीं है, द मीनिंग ऑफ कंट्री इज कंट्री साइड, द मीनिंग ऑफ कंट्री इज कंट्री साइड, कि हम अभी भी जो है ग्रामीण क्षेत्र में थे, पुराने ग्रामीण क्षेत्र में थे। वेयर, जहाँ पर एटलीस्ट कम से कम अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर, उस पुराने ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर कम से कम हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार, हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार वी बिलोंग्ड, हम बिलोंग्ड, हमारा नाता था। कम से कम उस पुराने ग्रामीण क्षेत्र में, पुराने ग्रामीण क्षेत्र में, ओल्ड कंट्री साइड में, कंट्री बेसिकली एरिया में हमारे पड़ोसियों का, हमारे कुछ पड़ोसियों का मानना था वी बिलोंग्ड, कि हमारा नाता था। और वी बिलोंग का मतलब होता है हमारा नाता था,
हमारा नाता का मतलब है हम उस ओल्ड कंट्री साइड के मूल निवासी थे। क्या थे हम लोग? मूल निवासी। हम उसके मूल निवासी थे, हम उसके मूल निवासी थे। We let the horse run as long as it felt like running. We let the horse run. हमने घोड़े को रन करने दिया, मतलब घोड़े को दौड़ने दिया। We let the horse run. हमने घोड़े को दौड़ने दिया as long as it felt like running. जितना लंबा, जितना दूर तक वह दौड़ सकता था, हमने उसे दौड़ने दिया। जितना वह महसूस कर सकता था रनिंग को, हमने उसे दौड़ने दिया। At last my cousin Murad said, get down. और अंत में, आखिर में मेरे कज़न मुराद ने कहा कि गेट डाउन, नीचे उतरो, नीचे उतरो। आई वॉन्ट टू राइड अलॉन, मैं अकेला इसे राइड करना चाहता हूँ, मैं अकेला इसकी सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलॉन, आई आस्क्ड। विल यू लेट मी राइड अलॉन, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे अकेले चलाने दोगे क्या? क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे क्या? विल यू लेट मी राइड अलॉन, क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे क्या? दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजन सेड, गेट डाउन। मेरे कजन ने कहा गेट डाउन, दैट इज अप टू द हॉर्स, ये घोड़े पर है, ये घोड़े पर है, घोड़े के ऊपर है कि तुम्हें वो सवारी करने देगा या नहीं करने देगा, तुम्हें अपने ऊपर अकेला बिठाएगा या नहीं बिठाएगा, वो घोड़े के ऊपर है, वो हॉर्स के ऊपर है। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा कि घोड़ा मुझे सवारी करने देगा, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, उसने कहा वी शैल सी, हम देखेंगे क्या होगा बाद में, बस जस्ट गेट डाउन, नीचे उतरो। ओके, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, we'll see that, हम ये देखेंगे, but don't forget that I have a way to the horse, but don't forget that I have a way with a horse, but don't forget that I have a way with a horse। लेकिन भूलना मत कि I have a way with a horse, I have a way with a horse। और way का मतलब यहाँ पे टेक्निक, वे का मतलब यहाँ पे how to write, the meaning of way is talent, the meaning of way is skills। okay, lots of meaning I'll say of way, तरीका नहीं है, हम कहें कि वो कहना चाहता है, वो कह रहा है कि मुझे घोड़े को चलाने का तरीका मालूम है, मुझ में घोड़े को चलाने का टैलेंट है, मुझे घोड़े को चलाने का स्किल्स आता है, मुझे हॉर्स को कंट्रोल कैसे करते हैं, मुझे वो वे आता है। भूलना मत, ठीक है, भूला। मुराद ने कहा डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, कि मेरा वे है घोड़े के साथ, मतलब मुझे घोड़े को कंट्रोल करना आता है, मुझे वो स्किल्स है, मुझे वो टैलेंट है। वेल अच्छा, आई सेड, मैंने कहा वेल अच्छा, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव आल्सो, कि तुम्हारा घोड़े के साथ कोई भी वे हो, तुम्हारा घोड़े को कंट्रोल करने का, हॉर्स को कंट्रोल करने का कोई भी तरीका हो, कोई भी मेथड हो, कोई भी स्किल्स हो, मुझे भी आता है, मुझे भी आता है। आई हैव आल्सो, मेरे पास भी है। इवन आई कैन कंट्रोल द हॉर्स, इवन आई कैन राइड द हॉर्स, मेरे पास भी है, तेरे पास अकेले के पास नहीं है। Even he was only 9 years old, Adam was 9 years old, and Murad was also not the mature person, he was also 13 years old, okay, 13 years old boy, 13 साल का ही था वो भी। उस समय की बात जब हम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि तुम्हारे पास हॉर्स को जो है वे हो, तरीका हो, आई हैव आल्सो, मेरे पास भी है, मेरे पास भी है। फॉर द शेक ऑफ योर सेफ्टी इज दैट, उसने कहा, मुराद ने कहा फॉर द शेक ऑफ योर सेफ्टी, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए बोल रहा हूँ, मुझे अकेले चलाना है, मैं तेज चलाऊंगा, मतलब वो कहना चाह रहा है, मीनिंग यहाँ निकल रहा है कि फॉर द शेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। लेट अस, ही सेड, उसने कहा लेट अस होप, सो चलो ऐसी आशा करते हैं, गेट डाउन, और नीचे उतर जाओ। ऑल राइट, चलो ठीक है, आई सेड, मैंने कहा ऑल राइट, चलो ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलॉन, बट रिमेंबर यू गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलॉन, लेकिन भूलना मत कि तुम मुझे अकेले चलाने दोगे, लेकिन भूलना मत, रिमेंबर भूलना मत कि तुम मुझे अकेले चलाने दोगे। दैट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलॉन, ओके। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा, एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, और मेरे कज़न मुराद ने जो है, आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा, एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील, और मेरे कज़न मुराद ने किक्ड हिज हील, अपने एड़ियों से जो किक किया, घोड़े को किक करते ना उसे भगाने के लिए, उसे किक किया, लात मारी, इनटू द हॉर्स, घोड़े के अंदर, मतलब घोड़े के स्टमक पे मारा होगा, एंड शाउटेड, और वह चिल्लाया और बोला, उसने कहा वज़ायर, क्या बोला, वज़ायर। अब एक है ना, एक होता हिंदी में बड़े वज़ीर, यानी से वज़ीर मत समझना बेटा, इट्स नॉट अ वज़ीर इन दैट Amani language, the word is Amani, it's a word of Amani language, उसने कहा वज़ायर, घोड़े को बोला कुछ ऐसा बोलते हैं उसे भगाने के लिए, वज़ायर, ओके, रन कहा, दौड़ो। The horse stood on its hind legs, और हॉर्स जो अपने हिंड लेग्स, पीछे के पैरों पे खड़ा हो गया, जैसा कि यहाँ पे
पोस्टर में दिया हुआ है अच्छा खासा एक पिक्चर है हमारे पास इसी पेज के ऊपर कि हिंडलिंग जो पीछे के पैर है उस पर घोड़ा जो है खड़ा हो गया। ओके, द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स और हॉर्स जो अपने हिंड लेग्स पीछे के पैरों पे खड़ा हो गया। स्नॉटेड वह फुफकारा, स्नॉट करना। ओके, स्नॉट करना, डॉग बार्क करता है। ओके, और बेसिकली कैट म्यूलिंग करती है। तो यहाँ पे हॉर्स कैसे करता है? स्नॉट करता है। हॉर्स ने स्नॉट किया, फुफकारा, एंड बर्स्ट इनटू अ फ्री ऑफ स्पीड, और वह जोरों से दौड़ा, बहुत तेज गति से दौड़ा। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैव एवर सीन, और जो सबसे सुंदर दृश्य था जो अब तक मैंने देखा था, जो अब तक मैंने देखा था सबसे सुंदर दृश्य था। माई कज़न मुराद रेज द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, और मेरे कज़न मुराद ने जो है घोड़े की सवारी की। मेरे कज़न मुराद ने माई कज़न मुराद रेज द हॉर्स, घोड़े को दौड़ाया, अक्रॉस अ फील्ड, खेत के चारों ओर, ऑफ ड्राई ग्रास, सूखे घास के खेत के चारों ओर मेरे कज़न मुराद ने घोड़े को दौड़ाया। टू एन इरिगेशन रीजन, वहाँ से ले गया कहाँ? सिंचाई के गड्ढों की ओर। कहाँ ले गया? सिंचाई के गड्ढों की ओर ले गया। डिच, खाइयाँ, गड्ढे होते हैं। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और घोड़े पर बैठे बैठे जो गड्ढों को क्रॉस किया, पार किया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद वापस आया। और आफ्टर 5 मिनट रिटर्न, 5 मिनट बाद वापस आया, ड्रिपिंग वेट, पूरा पसीना होते हुए, पूरे पसीने भीगे हुए। आफ्टर 5 मिनट्स बेसिकली ही रिटर्न, में 5 मिनट वापस आया। द सन वाज कमिंग अप, द सन वाज कमिंग अप, सूरज ऊपर आ रहा था, मतलब इट वाज टाइम ऑफ बेसिकली ऑफ सनराइज, सनराइज का समय था, सूरज ऊपर आ रहा था। द सन वाज कमिंग अप, नाउ इट्स माय टर्न टू राइड, अब बारी मेरी थी सवारी करने की, अब बारी मेरी थी सवारी करने की। आई से मैंने कहा नाउ इट्स माय टर्न टू राइड, अब बारी मेरी है सवारी करने की। माय कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़न मुराद जो है वह घोड़े से जो है नीचे उतर गया। माय कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़न मुराद जो है घोड़े से नीचे उतर गया। राइड, ही सेड, कहा कि करो सवारी, कहा कि सवारी करो, और कहा कि सवारी करो। आई लीड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े के पीछे, मतलब उसके ऊपर छलांग लगाई, बैठा मैं। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, एंड फॉर द मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल इमेजिनेबल, ऑफुल का मतलब होता है भयानक, भयानक, और फियर का मतलब होता है भय, इमेजिनेबल का मतलब कल्पनामयी, और कुछ क्षण के लिए मैंने कल्पनामयी तरीके से बहुत ही भयभीत हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा मैं डर गया था, बहुत डर गया था भयानक तरीके से। इसमें लिखा हुआ है आई लीड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े के ऊपर छलांग लगाई। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और एक क्षण के लिए जो मैं काफ़ी भयभीत हुआ, बहुत डर गया था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, लेकिन घोड़ा हिला नहीं था, घोड़ा हिला नहीं था। किक इनटू हिज मसल, माय कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा इसकी मसल में, इसकी मांसपेशियों में किक करो, इसकी मांसपेशियों में जो है लात मारो, किक करो, ठीक है। What are you waiting for? तुम किसका वेट कर रहे हो? तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. We have got to take him back. हम उसे वापस लेके आना है, हमें उसे वापस लेके आना है। Before everybody in the world is up, जिससे पहले and about, लगभग इससे पहले कि हर व्यक्ति जो है उठ जाए, उठ खड़ा हो, सवेरा हो जाए, हमें उसे वापस लेके आना है। I kicked into the muscle of the horse, मैंने घोड़े की मसल में जो है किक किया। Don't forget that Aaron was only 9 years old. He was able to control the horse, right or not? Let's have the story again, just after some line. Okay, I kicked into the muscles of the horse, मैंने घोड़े की मसल्स में जो है किक किया। Once again it reared and snorted. It reared, और एक बार फिर से उसे reared का मतलब वह पीछे की टांगों पे खड़ा हो गया, आगे की टांग पे तो खड़ा होगा नहीं ना, रियर होगा। सो इट रियर एंड स्नॉटेड, एक बार फिर से वह पीछे की टांगों पे खड़ा हुआ, स्नॉट किया, फुफकारा। देन इट बिगन टू रन, उसके बाद उसने दौड़ना शुरू किया। उसने क्या किया? दौड़ना शुरू किया। आई डिडंट न्यू व्हाट टू डू, मुझे पता नहीं था करना क्या है, मुझे मालूम नहीं था करना क्या है, मुझे पता नहीं था करना क्या है। बेसिकली आई डिडंट न्यू व्हाट टू डू। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, खेत के चारों ओर दौड़ने के बजाय और सिंचाई वाले गड्ढों के वहाँ पर जाने के बजाय, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड, घोड़ा जो है सड़क के उस और वाइन यार्ड, अंगूर के बागान की ओर दौड़ना शुरू किया उसने। अरे सिंचाई वाले गड्ढों की ओर जाने के बजाय उसने सड़क के उस और जो है, सड़क के उस और जो है अंगूर के बगीचों की ओर दौड़ना शुरू किया। कहाँ के बगीचे? ऑफ दिक्रम हैलाबियन, दिक्रम हैलाबियन के।
विक्रम हैलाबियन के अंगूर के बागानों की और अंगूर के बगीचों की ओर दौड़ना शुरू किया। वेर इट बिगन टू लीव आवर वाइन, जहाँ पर उसने वाइन्स की ओर, जहाँ पर उसने अंगूर की लताओं की ओर जो है उछलना शुरू किया। द हॉर्स लीव्ड आवर 7 वाइन्स, और जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो है, वह 7 लता की बेलों पर लपका, उछला। बिफोर आई फेल, इससे पहले कि मैं नीचे गिरा, मतलब मैं नीचे गिर गया था, नीचे मैं गिर गया था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, इसके बाद उसने लगातार दौड़ना शुरू किया। उसके बाद घोड़े ने लगातार जो है दौड़ना शुरू किया। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और मेरा कज़न मुराद जो है दौड़ता हुआ डाउन द रोड, सड़क के उस ओर आया, सड़क के उस ओर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, उसने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, आई एम नॉट वरीड अबाउट, ही शाउटेड, उसने चिल्ला के बोला कि मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ। अरे तू गिर गया, मुझे उसकी चिंता नहीं है, तू गिर गया, मुझे उसकी चिंता नहीं, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को वापस लेके आना है। गिरा के चला गया। एरम वाज 9 years old, कि हमें उस घोड़े को वापस लेके आना है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को वापस लेके आना है। यू गो दिस वे एंड आई गो दिस वे, यू गो दिस वे एंड आई गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ और मैं इस रास्ते जाता हूँ। यू गो दिस वे एंड आई गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ और मैं उस रास्ते जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम्हें वो घोड़ा मिले या तुम उसके पास पहुँचो, बी काइंडली, काइंडली रहना, थोड़ा पोलाइटली बिहेव करना। आई विल बी नियर, मैं आ जाऊँगा पास में, मैं नज़दीक आ जाऊँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न, और मैं लगातार जो है सड़क के ओर चला और मेरा कज़न भी चला। मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड, मुराद जो है खेतों के उस और चारों ओर गया। टुवार्ड द इरिगेशन ट्रीज, किसकी ओर? उस सिंचाई वाले गड्ढों की ओर। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, और घोड़े को खोजने में उसे आधा घंटा लग गया, और घोड़े को खोजने में उसे आधा घंटा लग गया। एंड ब्रिंग हिम बैक, उसे वापस लाने में, उसे घोड़े को खोजने में इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे घोड़े को फाइंड करने में, घोड़े को खोजने में, ब्रिंग हिम बैक, उसे वापस लाने में जो है हाफ एन आवर लग गया, 30 minutes लग गया, आधा घंटा लग गया। ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडे, विल हैव द नेक्स्ट क्लास इन आवर नेक्स्ट वीडियो।